Dear students, today I am going to talk about question tag. What is question and what is question tag? Today I will give you the difference between both. Question tag. Before going through the study of question tag, we must know what is question. What is question? Question means interrogative sentence. Question means interrogative sentence. And you all know that there are two types of question. First is known as yes no question, yes no interrogative sentence, and second one is known as WH interrogative sentence. Yes no interrogative sentence is those types of question which answer is only yes or no, while WH interrogative sentence doesn't get the answer yes no. It is apart from yes or no. It is apart from yes or no. That means the answer of WH interrogative sentence we cannot give in yes or no, while yes no interrogative sentence give the answer yes or no. Suppose I write here two sentence. I will write here. First is, are you my friend? Are you my friend? This is the question. And the Hindi of this, क्या आप मेरे दोस्त हैं? What will you give your answer? If I ask you, are you my friend? Then you will have to reply. Either you will give me yes or you will say no. If you are my friend, then you will speak yes, or if you are not my friend, then you will speak no. So here, these types of question is known as yes no interrogative sentence, and it starts with helping verb. This is what R is helping verb. This is helping verb. So if the sentence starts with helping verb, we can say that types of sentence is interrogative sentence with yes no. This is known as yes no interrogative sentence. While if we talk about WH question word, if we talk about WH interrogative or WH sentence, then see here, if I ask you what is your name, what is your name, then you will have to speak me my name is ... my name is Vikas Kumar, or you can say only your name Vikas Misra. You can speak your any types of name you can speak here. So these types of question is not given in the answer of yes or no. You cannot speak yes no answer of these types of question. So these types of question is called WH interrogative sentence. This is known as WH interrogative sentence, and it starts with WH words. Now the basic structure of yes no interrogative sentence. Yes no interrogative sentence has the structure of helping verb plus subject plus main verb, and after that a question mark. This is the basic structure of yes no interrogative sentence. And WH interrogative sentence has the structure of WH word plus helping verb. After that subject will be written, then after main verb, and at last you will write question mark. This is the structure of WH interrogative words, and this is the structure of yes no interrogative sentence. But there are main difference between a question tag and question. Question tag is not a fully question. जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं होता है. क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन होता है, बट क्वेश्चन टैग जो है वो फुली क्वेश्चन नहीं है, ये कोलोकियल होता है. क्वेश्चन टैग इज अ कोलोकियल, इट इज यूज्ड इन कन्वर्सेशन. दिस इज and this is used for only to get the confirmation of a statement. किसी स्टेटमेंट का कंफर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन टैग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अगर एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई राइट अ सेंटेंस हियर, आई एम योर टीचर.
this is the sentence, this is affirmative sentence. And if I have to ask you a question with this help of affirmative sentence, I am your teacher, मैं आपका शिक्षक हूँ, और एक सवाल इसमें मैं कर दूं कि मैं आपका शिक्षक हूँ ना, मैं आपका शिक्षक हूँ ना, तो अब यहाँ पर है मुझे मालूम है कि मैं आपका शिक्षक हूँ, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन अब मेरी कंफ्यूजन है, ठीक है, जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ और आपके ही मुंह से, ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं आपका शिक्षक हूँ या नहीं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मैंने एक कंफ्यूजन होने की वजह से यहाँ पर एक मैंने टैग कर दिया, ना को टैग कर दिया गया, मैं आपका शिक्षक हूँ, मुझे मालूम है, ठीक है, इसका आंसर भी मैं जानता हूँ कि मैं आपका शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन थी जिसके वजह से मैंने इसको एक क्वेश्चन में टैग कर दिया, क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ठीक है, जिसका आंसर जो है मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर जो है यस में देंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो होप होगा आंसर का वो यस में होगा, और ये जो है क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। इसी तरह से निगेटिव का भी हो सकता है, मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ। तो अगर ये है कि मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ तो मुझे पहले से ही इसका आंसर मालूम है, ठीक है, कि मैं आपका शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन होने की वजह से, ठीक है, मैंने उसमें एक टैग कर दिया, और इसका आंसर जो है मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप नो कहेंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन टैग है, ठीक है। सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, उससे सही सही कंफर्मेशन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ठीक है, अभी जो है आपका सबसे फर्स्ट रूल जो होगा ये होगा कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप नहीं बना सकते हैं। You can't add question tag in any types of interrogative sentence. That means interrogative sentence cannot be tagged by a question tag. ठीक है, क्वेश्चन टैग जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को में नहीं ऐड कर सकते। जैसे अगर लिखा हो आर यू माई ब्रदर, तो ये क्या है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आर से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो है इसका क्वेश्चन टैग जो है मैं बना नहीं सकता हूं, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक क्वेश्चन टैग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। उसी तरह इन द सेम वे इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ WH वर्ड्स हु आर यू and you have to add the question tag in it, then this is not possible to add question tag in this, ठीक है। यानी कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हुआ आपका रूल फर्स्ट, जो कि बेसिक रूल है। दूसरा है रूल सेकंड है, सबसे पहले आपको जो है किसी भी स्टेटमेंट का, चाहे स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो या फिर इंपरेटिव हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव and imperative, these three types of sentence can be tagged by a question, ठीक है। तीन तरह के जो ये स्टेटमेंट है इसी में हम क्वेश्चन टैग जो है ऐड कर पाएंगे, ठीक है, सिर्फ इसी तीन में ऐड होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक इंपरेटिव, ठीक है। अब देखिए रूल 3, आपको कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग जो होगा उसमें आप नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड नाउन इन द टैग ऑफ क्वेश्चन, नाउन जो है उसके इस्तेमाल को हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है। क्या यूज करना है वहां पर, प्रोनाउन यूज करना है, हमेशा जो है प्रोनाउन यूज करना है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में। चलिए देखिए क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसका जो रूल है, पहला रूल है आपका कि अफर्मेटिव जो होगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको निगेटिव टैग करना है,
ठीक है, ये आपका रूल नहीं है, ये सारे के सारे बेसिक जानकारी थी, ये सब बेसिक जानकारी है। ठीक है, बेसिक ये सब जानकारी है क्वेश्चन टैग का। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव टैग करना है, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तब जो है आपको पॉजिटिव टैग करना है, यानी अफर्मेटिव टैग करना है। देखिए टैग जो भी होगा, टैग जो आपका होगा वो टैग हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ होगा और उसमें सब्जेक्ट होगा। दो चीज होगा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट। ये आप याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट टैग के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। और ये भी याद रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंस होने पर अफर्मेटिव टैग। चलिए एक बनाकर मैं देखता हूं, ठीक है। देखिए, सी इज माई टीचर, सी इज माई टीचर। सबसे पहले आपको कॉमा देना है, सेंटेंस के फिनिश होने के बाद, एंड होने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा देना है। और उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, मैंने बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा सब्जेक्ट। टैग में आपका यही दो चीज होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए, कहाँ पर है, इज है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इज। और सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट कौन सा है, सी, तो सी अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे सी। और आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेंटेंस मेरा कौन सा है, अफर्मेटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं है, नॉट इसमें नहीं लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर नॉट ऐड कर देना है, ठीक है, इजंट। और आप इसमें शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे, जैसे आपका है इज और इसमें आपको नॉट लगाना है, तो आप इसको इजंट लिखेंगे। एम प्लस नॉट है, इसको आरंट लिखेंगे। सैल प्लस नॉट, इसे सांट लिखेंगे। और विल प्लस नॉट, इसको वांट लिखेंगे, ठीक है। कैन प्लस नॉट कांट लिखेंगे। देखिए ये जो है आपको ये चार जो है सिर्फ आप याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड्स का फॉर्मेशन जो है इसमें चेंज हो जाता है। सैल है तो सैल यहाँ पर नहीं आया, विल है तो विल नहीं आया, और कैन है तो पूरा कैन नहीं आया। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब है, तो बाकी के जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सारे के सारे पूरे लिखे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एम जो है वो आर में चेंज हो गया। बाकी के जो हैं हेल्पिंग वर्ब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड। ये जो 7 हैं ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, और ये 4 जो हैं वो पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावे है शैल, विल, कैन, मे, कुड, माइट, नीड, डेयर, ought to, used to, must, should और would। देखिए 7 यहाँ पर हुआ प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाला, 4 यहाँ पर है पास्ट में इस्तेमाल होने वाला। शैल विल फ्यूचर में भी यूज होता है, ठीक है, और शैल विल का कुछ और भी यूज होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि शैल विल जो है वो सिर्फ फ्यूचर में ही यूज हो, इसका इस्तेमाल जो है और भी कई तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये जो है आपके 24 जो हैं हेल्पिंग वर्ब हो गए। ठीक है, अब इसमें नॉट लगा के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है। जैसे अब किसी में भी लगाना है आपको, यूज्ड टू है, इसमें आपको नॉट को यूज करना है, तो आप लिखेंगे इसको यूज्ड, और यहाँ पर एन लिखेंगे, एन के बाद जो ओ है उसको ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप करने के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और टी लिख देंगे, मतलब ओ को रिमूव करके ओमिट करके और वहां पर एपोस्ट्रॉफी यूज करना है आपको, यूज्ड, और उसके बाद टू लिख देंगे। वुड है, आपको नॉट इसमें ऐड करना है, तो वुड एन एपोस्ट्रॉफी टी, वुडंट हो गया। तो ये जो है बाकी के जितने हैं, मतलब 1 2 3 4, ये 4 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं उसमें आपको एपोस्ट्रॉफी यूज करना है ओ को ड्रॉप करके, और बाकी जो है आप इसको 4 जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए आगे जो मैं आपको बताऊंगा। सीता हैज ए कार, अभी जो है इसका क्वेश्चन टैग करना है। ठीक है, सीता हैज ए कार, तो अब यहाँ पर सीता है, तो सीता के लिए क्या लिखेंगे आप, नाउन का तो यूज करना नहीं है। ठीक है, नाउन जो है आप यूज नहीं करेंगे, तो सीता के लिए आप लिखेंगे सी, और हैज है तो हैज है, हैज यहाँ पर लिखेंगे सी के अकॉर्डिंग हैज ही आता है। ठीक है, सी के अकॉर्डिंग हैज यहाँ पर यूज होगा, और इसमें देखिए नॉट नहीं लगा हुआ है, तो नॉट आपको इसमें यूज करना है, तो हैजंट लिख देंगे, हैजंट सी। ये जो है आपका टैग बन गया। सीता हैज ए कार, सीता के पास एक कार है, सीता के पास गाड़ी है, और इसका ऐड किए तो हो गया सीता के पास गाड़ी है ना। इसका मतलब सीता के पास गाड़ी है ना, सीता के पास कार है, और यहाँ पर लग गया ना, यानी कि जो पूछ रहा है ना उसको मालूम है पहले से ही सीता के पास कार है, अफर्मेटिव है, सीता के पास कार है, उसको चांसेस जो हैं 90% है कि उसके पास कार है, लेकिन वो कंफ्यूज है। ठीक है, इसलिए उसने एक टैग कर दिया ना, और उसको एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन टैग हो गया, सीता के पास कार है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन टैग जो है उसका सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखिए टैग जो है, टैग करते समय आपको 2 चीज ध्यान में रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट। टैग में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये 2 चीज का ख्याल रखना है आपको। सब्जेक्ट जो है उसका सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, स्टेटमेंट जो दिया हुआ होगा आपका, स्टेटमेंट का मतलब क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसमें फिर कॉमा आप लगाएंगे और फिर टैग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट को आप यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, हर एक सेंटेंस में आपको यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पर बदल जाता है, तो कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो होगा, इस सब्जेक्ट को देख करके यहाँ पर तो लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैसे ये बदलेगा उसे मैं बता देता हूँ। जहाँ पर लिखना है वहाँ तो लिखना ही है। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन आप यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउन के अलावे, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अगर ये सब होगा तो आप इसको वैसे ही वहाँ लिख देंगे, लेकिन इसके अलावे अगर कुछ होगा तो आपको चेंज करना होगा। देखिए कैसे आप सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट somebody होगा, somebody, nobody, anybody,
एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन या फिर एवरीवन। तो बॉडी वाला कोई भी पार्ट हो, ठीक है, या फिर वन वाला कोई भी पार्ट हो। तो अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में ए होगा तो टैग वाले पार्ट में आपको दे लिखना है। टैग वाले पार्ट में आपको दे लिखना है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं नोबडी, नोबडी हैज हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर टैग करना है, ठीक है, नोबडी हैज हेल्प्ड मी। तो आप देखिए नोबडी है, नोबडी के लिए आप क्या लिखेंगे, नोबडी के लिए आपको देखिए नोबडी है, यहाँ पर दे है, तो आप टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे लिखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ देखना है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसका हैज है, तो आप हैज यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये दे है तो दे के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। हैज का कंटेम्पोरेरी हैव होता है, ठीक है, उसका समकक्ष हैव लिखते हैं, तो दे के साथ हैव लिखेंगे। अब यहाँ पर अब देखिए कि इसमें नॉट लगा हुआ है कि नहीं, नोबडी हैज हेल्प्ड मी। तो देखिए आप ध्यान से, नोबडी जो है आपका या नो जो लगा हुआ है ये निगेटिव है, तो यहाँ आपको नेगेटिव टैग नहीं करना है, यानी कि ये जो है आपका अफर्मेटिव टैग में ही बनेगा, ठीक है। नोबडी हैज हेल्प्ड मी हैव दे, ये जो है आपका टैग बन गया। इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा कि बॉडी है, बॉडी वाला कोई भी पार्ट होगा, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, या समवन, नोवन, एनीवन या एवरीवन, तो इसके साथ जो है आपको दे का इस्तेमाल करना है। इसके बदले में दे विल बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। चलिए दूसरा जो है, दूसरा देखते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ होगा नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, थिंग वाला कोई भी पार्ट होगा, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, तो इसके लिए आपको इट का इस्तेमाल करना है। टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। जैसे नथिंग इज बीइंग डन, कुछ नहीं किया जा रहा है, नथिंग इज बीइंग डन। तो यहाँ पर थिंग वाला पार्ट है, तो इसके लिए आप इट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इज है तो इट के अकॉर्डिंग भी इज ही आएगा, नथिंग के अकॉर्डिंग भी इज और इट के अकॉर्डिंग भी इज। और इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, इसमें नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट जो है आपको यूज नहीं करना है। नॉट यहाँ पर लगा हुआ है नो, ठीक है, नो थिंग, तो नो थिंग में नो लगा हुआ है, नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव टैग कर दिया यहाँ पे, इज इट जो है हमारा टैग बन गया। तो आप याद रखेंगे नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग के लिए इट का इस्तेमाल करना है, या सिर्फ थिंग भी होगा तो इट का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थिंग के लिए भी इट प्रोनाउन यूज किया जाता है। चलिए अब आगे है, देखिए वन वाले पार्ट में मैंने बताया कि अगर इसके पहले समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन कुछ भी होगा तब जो है आपको दे यूज करना है। समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन के लिए दे यूज करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ वन होगा तो उसके लिए वन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे वन हैज टू लॉज समथिंग टू गेट समथिंग, वन हैज टू लॉज समथिंग टू गेट समथिंग, किसी को कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो अब ये जो है यहाँ पर वन है, ठीक है, तो वन के लिए यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे और वन के लिए आप वन ही इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हैज है, वन के अकॉर्डिंग हैज लगा, यहाँ भी वन के अकॉर्डिंग हैज ही लगेगा, ठीक है। आप वाज, वेयर, डू, डज, डिड, इज, एम, आर नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो जिसका लेवल का होगा, हैज है तो हैज के लेवल में क्या आता है, हैज, हैव आता है। इज, एम, आर होता तो इज, एम, आर वाले में से किसी को रखते हैं, अगर वाज होता तो वेयर रखते हैं, डू होता तो डज रख सकते थे, डिड रख सकते थे, यानी कि जो उसके लेवल का होगा, ठीक है। हैज है तो यहाँ पर हैज या हैव में से ही कोई आएगा, चूंकि वन है तो वन के अकॉर्डिंग हैज आ गया।
और देखिए वन हैज़ टू लॉज समथिंग टू गेट समथिंग, इसमें कहीं पर भी नॉट नहीं लगा हुआ है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव है, पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आपको यहाँ पर नॉट यूज़ करना होगा। तो इस तरह से आप हैज़ंट लिखेंगे, ठीक है। हैज़ंट वन, वन के लिए आपको वन का इस्तेमाल करना है। चलिए इसी में एक और देख लेते हैं। अगर वन के बाद कोई नाउन होगा, जैसे वन बॉय इज गोइंग टू पटना, ठीक है, वन बॉय इज गोइंग, एक लड़का जा रहा है, तो अब जो है आप ये जो है आपका सब्जेक्ट कौन है, वन सब्जेक्ट नहीं है, बॉय सब्जेक्ट है, तो बॉय के लिए क्या लिखेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बॉय के लिए ही होगा। कोई लड़की का नाम लड़की होती, मतलब यहाँ पर गर्ल होता तो सी लिख देते हैं, ठीक है। बॉय है तो ही हो गया, और यहाँ पर देखिए इज है तो ही के अकॉर्डिंग भी इज ही आएगा, और इसमें देखिए कि नॉट जो है यूज नहीं है, तो नॉट जो है यहाँ पर यूज कर देंगे, इजंट ही। कोई अगर कोई पुरुष का लड़का का नाम होगा उसके लिए ही यूज करना है, लड़की के नाम के लिए सी यूज करना है, और प्लुरल होगा तो दे यूज करेंगे। चलिए आगे जो है आपका, अगर दिस दैट होता है तो उसके लिए टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर दिस के बाद बॉय होगा या गर्ल होगा तो इस बॉय और गर्ल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी। जैसे रहेगा दिस बॉय इज गोइंग, तब फिर बॉय के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और रहेगा कि दिस इज अ बॉय, दिस इज ए बॉय, टैग करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे और इजंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इजंट इट। और यही रहता लिखा हुआ दिस बॉय इज गुड, तब जो है आपको यहाँ पर ही यूज करना पड़ता बॉय के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस जो है ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही यूज करेंगे, और फिर यहाँ पर इजंट लिखेंगे, इजंट ही। चलिए अब आगे जो है एक और देखिए, ठीक है। अगर दीज होगा, दीज दोज, इसके लिए आपको दे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों प्लूरल है इसलिए दे का इस्तेमाल करेंगे दीज दोज के लिए, ठीक है। अगर देयर होगा, सब्जेक्ट के रूप में देयर होगा, तो टैग का सब्जेक्ट भी देयर यूज करेंगे, देयर इज ए पेन, तो कॉमा यहाँ पर देंगे, ठीक है। देयर है क्वेश्चन मार्क देंगे, और इज है तो क्या लिखेंगे, इजंट, इजंट देयर, देयर के लिए देयर का इस्तेमाल। चलिए ठीक है, यह तो हो गया। अब जो है मैं आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स बता देता हूँ। नेगेटिव वर्ड्स जिसके वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए नो, नॉट, नॉर, नेवर, नन, नो वन, नथिंग, हार्डली, स्कैर्सली, rarely, seldom, हार्डली, स्कैर्सली, rarely, seldom, ये जो सारे वर्ड हैं, ठीक है। एक और भी है नो, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। अगर इसके अलावा भी है, एक फ्यू है और लिटिल है। देखिए नो, नॉट, नॉर, नेवर, नन, नो वन, रैरली, स्कैर्सली, हार्डली, नथिंग, सेल्डम, नो, फ्यू, लिटिल, ये सारे जो वर्ड हैं वो नेगेटिव वर्ड हैं। और जब ये नेगेटिव वर्ड हैं तो इनके साथ हमेशा अफर्मेटिव टैग होगा। आप याद रखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लिटिल, आई हैव लिटिल टी इन माई कप, मेरे कप में न के बराबर चाय है। लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत एनफ नहीं होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। तो न के बराबर है तो यानी कि नेगेटिव है।
तो निगेटिव है तो आपको जो टैग करना है वो पॉजिटिव टैग करना है। पॉजिटिव टैग करेंगे सबसे पहले, तो इसका आई है, आई होगा क्वेश्चन मार्क देंगे, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ये हैव है तो आई के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हैव ही लगेगा, ठीक है। और लिटिल में नॉट लगा हुआ है तो छोड़ देंगे, बस टैग हो गया, आई हैव लिटिल टी इन माई कप, है भाई। लेकिन आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड है, और ए लिटिल और ए फ्यू, ए लिटिल ए फ्यू और द लिटिल और द फ्यू, ये जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, लेकिन ए लिटिल का मतलब होता है हाँ के बराबर, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ, ए फ्यू मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में, द लिटिल का मतलब कुछ जितना है सब के सब, और द फ्यू का मतलब होता है कुछ जितना है सारे के सारे। तो लिटिल और फ्यू रहेगा तो नेगेटिव, और ए फ्यू रहेगा, ए लिटिल द फ्यू तो पॉजिटिव सेंस में होगा, और फिर इसके साथ आपको नेगेटिव टैग करना है। चलिए इस पर और भी एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। चलिए इसका देखिए, अगर मान लेते हैं हार्डली यूज किया हुआ हो, सी हार्डली गोज टू दिल्ली, वो कभी कभार दिल्ली जाती है, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है न के बराबर, कभी कभार, ठीक है, मतलब निगेटिव सेंस में। ये जो है आपका निगेटिव वर्ड है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए सी के जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं सीता, सीता है तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। और ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें क्या है, गोज जो है वो मेन वर्ब है, 5वां फॉर्म है, ठीक है, 5 फॉर्म है। तो सी के लिए आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा डज, और चूंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, हार्डली जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर नॉट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव ही इसको बनाएंगे, डज सी, सी हार्डली गोज टू दिल्ली डज सी, वो न के बराबर दिल्ली जाती है ना, ठीक है। इस तरह से आपका ये हिंदी होगा। तो ये जो था, ठीक है, क्वेश्चन टैग का मैंने आपको पार्ट स्टेप बाय स्टेप बताया, ठीक है। इसमें अभी और भी हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसको किस तरह से बनाना है, उसके लिए मैं एक आपको अगली वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विथ बीइंग विथ मी, मेनी मेनी थैंक्स टू यू ऑल।